Good morning, students. Welcome to online platform of Shri Academy. Before your half yearly examinations, we started the chapter My Dearest Lizzie. We discussed about the author and the word meanings. So, we will continue with the remaining portion of the story. So, let's start. Before starting the story, I would like to give some preface about the story. So, this story is written by Jane Austen. She was an English novelist. She used to wrote on the condition of the women's at that particular period of time. In this story is extract taken from Pride and Prejudice, which is about the spirited Bennet family. Mrs. Bennet is obsessed with finding suitable husband for all her five daughters. When a wealthy young man, Charles Bingley, takes a house nearby, Mrs. Bennet is overjoyed. Her eldest daughter Jane succeeds in impressing Mr. Bingley. She is invited to his place at Netherfield. There she falls ill and sends a letter to her family. So, as we have read that this story is an extract taken from the book named Pride and Prejudice. Wait a minute. Okay, I think my due to some technical error, pointer is not coming on screen. Okay, so I'm going to zoom in the picture and you will understood that way. So this is the extract taken from Pride and Prejudice, and in this story we will read about two families. The first one is Bennet family and the Bingley family. The Bennet family is a poor family and Bingley family is quite rich family. So I'm going to start the story. Jane had not been gone long before it rained hard. That means Jane left for Mr. Charles Bingley's house and it started raining very hard. That means very heavily it was raining. Her sister were uneasy for her, but her mother was delighted. The rain continued the whole evening without intermission. Jane certainly could not come back. जेन जब चार्ल्स बिंगले के घर जा रही थी उस समय बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गई और उनकी जो सिस्टर्स थी वो उनके लिए बहुत ही परेशान थी, बट उनकी मदर जो थी वो बहुत खुश थी। और रेन जो है बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना रुकावट के पूरी इवनिंग होती रही। जेन सर्टेनली कुड नॉट कम बैक। जेन जो है कंफर्म था कि अब वापस नहीं आ पाएगी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। This was a lucky idea of mine indeed, said Mrs. Bennet more than once, as if the credit of making it rain were all her own. अब मिसेस जो बेनेट हैं वो बोलती हैं कि ये मेरा बहुत ही अच्छा आइडिया था। श्योरली, इंडीड मीन्स श्योरली। तो वो कहती हैं श्योरली मेरा आइडिया बहुत ही अच्छा था और वो सारा रेन जो हुआ, जो भी चेंजेस आए एटमॉस्फेयर, वो सारा क्रेडिट वो खुद लेना चाहती थी और उन्हें लगा कि वो बहुत ही उन्होंने अच्छा काम किया है और उनका आइडिया अच्छा था, उनका प्लान जो है वो अच्छी तरह से सक्सेसफुल हुआ है। वो ऐसा क्यों फील करती हैं? ऐसे इसलिए फील करती है क्योंकि उनका मोटिव है कि जो चार्ल्स बिंगले हैं वो इम्प्रेस हो जाए उनकी बेटी से और फिर उससे शादी कर लें। उस अर्लियर टाइम में क्या होता था कि गर्ल्स का फ्यूचर सिक्योर तभी माना जाता था जब उसकी एक अच्छे लड़के के साथ शादी हो जाए। तो यहाँ पे वही वो चाहती थी, तो इसी वजह से वो बहुत खुश थी कि अब वो उनके साथ गई है, उनके घर गई है और वापस नहीं आ पाएगी, तो उसे और ज़्यादा समय मिलेगा उनके साथ बिताने के लिए, जिससे कि चार्ल्स बिंगली जो है और ज़्यादा इम्प्रेस होगा और उससे शादी करेगा। Till her contrivance, breakfast was scarcely over when a servant from Netherfield brought the following note for Elizabeth. और फेलिसिट
of her contrivance means the positive result of her arrangement of the situation. तो मिसेस बेनेट जो थी वो ये सब डिस्कस कर ही रही थी, तब तक क्या होता है कि उनका ब्रेकफास्ट भी फिनिश नहीं हुआ था अच्छे से, और नेदरफील्ड से एक सर्वेंट आता है जो कि एक नोट लेकर के आया, एक लेटर लेकर के आया, किसके लिए? एलिजाबेथ के लिए। एलिजाबेथ कौन थी? जेन की सिस्टर। आई फाइंड माई सेल्फ वेरी अनवेल दिस मॉर्निंग which I suppose is to be imputed to my getting wet through yesterday. उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं आज अपने आप को अच्छा नहीं फील कर रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे लगता है ये इस वजह से हुआ है क्योंकि कल मैं भीग गई थी। My kind friends will not hear of my returning till I am better. और वो बोलती हैं कि मेरे जो दयालु मित्र हैं वो मुझे तब तक वापस नहीं जाने देंगे जब तक कि मैं अच्छी नहीं हो जाती हूँ। दे इंसिस्ट ऑल्सो ऑन माई सीइंग मिस्टर जोन्स, और वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि मिस्टर जोन्स आकर के मुझे देखें। देयरफॉर डू नॉट बी अलार्म्ड इफ़ यू शुड hear of his having been to me, and expecting a sore throat and headache, there is not much the matter with me, yours etc. और उसमें लिखा हुआ था कि डॉक्टर मुझे देखने आएंगे, उसके लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, और आप लोग इससे परेशान मत होइएगा क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मेरा सोर थ्रोट है, दैट मीन्स गले में खराश है और सर में दर्द है, और कुछ भी ज़्यादा नहीं है। और लेटर में एंड में योर्स एक्सेट्रा लिखा हुआ था, दैट मीन्स योर्स सिस्टर और डॉटर वॉट एवर वॉज मैंशनड। वेल माई डियर सेड मिस्टर बेनेट व्हेन एलिजाबेथ हैड रेड द नोट अलाउड। जब एलिजाबेथ ने ये नोट ज़ोर से पढ़ा तो मिस्टर बेनेट बोलते हैं वेल माई डियर, किसको बोलते हैं? अपनी वाइफ को। इफ़ योर डॉटर शुड हैव अ डेंजरस फिट ऑफ illness, if she should die, it would be comfort to know that it was all in pursuit of Mr. Bingley and under your order. मिस्टर बेनेट कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए और वो मर भी जाए तो तुम्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें अच्छा कंफर्टेबल ही रहोगी, क्योंकि ये सारा तुम्हारे कहने पे हो रहा है। और किस वजह से हो रहा है? मिस्टर बिंगले को इम्प्रेस करने के वजह से। Oh, I am not afraid of her dying. People do not die of little trifling colds. और वो बोलती हैं, मिसेस बेनेट बोलती हैं कि मैं बिल्कुल भी उसके मरने से नहीं डरती, और कोई भी छोटे मोटे सर्दी ज़ुकाम से मरता नहीं है। शील बी टेकन गुड केयर ऑफ, उसका अच्छा ध्यान रखा जाएगा। एज लॉन्ग एज शी स्टेज देयर इट इज़ वेरी वेल, और वो जब तक वहाँ रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। आई वुड गो एंड सी इफ़ आई कुड हैव द कैरेज, और वो बोलती हैं कि मैं उसे जा करके मैं उसे देखती अगर मेरे पास जाने के लिए कोई कैरेज होता, कोई सुविधा होती। Elizabeth, feeling really anxious, was determined to go to her through the carriage was not to be had. Though the carriage was not to be had. एलिज़ाबेथ जो है वो बहुत ही एनेक्शियस थी, दैट मीन्स बहुत ही डेस्परेट थी, और वो उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने सिस्टर से मिलने जाएंगी जबकि उनके पास कैरेज नहीं है। एज शी वॉज नो हॉर्स वुमेन, और जैसे कि वो हॉर्स वुमेन भी नहीं थी, उसे हॉर्स चलाने भी नहीं आता था, हॉर्स राइड करने नहीं आता था। वॉकिंग वॉज हर ओनली अल्टरनेटिव, उनका जेन से मिलने जाने का अल्टरनेटिव सिर्फ एक ही उनके पास रास्ता था, वो क्या था कि वो पैदल चल के जाएं। शी डिक्लेयर्ड हर रेजोल्यूशन, उन्होंने अपनी बात अपने घर में बताई, अपना इरादा बताया कि वो मिलने जाएंगी अपने सिस्टर जेन को। हाउ कैन यू बी सो सिली, क्राइड हर मदर, और उनकी मदर जब ऐसा सुनती हैं तो वो ज़ोर से चीखती हैं और बोलती हैं तुम इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो। हैज़ टू थिंक ऑफ सच अ थिंग इन ऑल दिस डर्ट, इस तरह की चीज़ सोचने के लिए इस डर्ट में क्या क्यों कहती हैं वो? क्योंकि उस समय बारिश हुई थी तो मड सॉइल और वाटर मिल करके पूरा डर्ट हो जाता है, चलना रोड पे चलना, वॉकिंग जब अनकंस्ट्रक्टेड रोड रहती है तो उस पर चलना, मिट्टी की रोड पे चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये क्योंकि बहुत पुराने टाइम की स्टोरी है
तो ऑब्वियस है कि उस टाइम पे जो आज के टाइम की वेल डेवलप्ड रोड होती हैं, इस तरह की रोड नहीं रही होगी, उनको पैदल ऊबड़ खाबड़ जगह से चल के जाना रहा होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस डर्ट में तुम कैसे सोच सकती हो वहाँ जाने के बारे में। यू विल नॉट बी फिट टू बी सीन व्हेन यू गेट देयर, और तुम जब वहाँ पहुँचोगी तो तुम देखने लायक हालत में नहीं होगी। आई शैल बी वेरी फिट टू सी जेन विच इज़ ऑल आई वॉन्ट। तो एलिज़ाबेथ क्या बोलती हैं, मैं अपनी सिस्टर जेन को देखने के लिए बिल्कुल फिट रहूँगी, और जो सिर्फ इतना ही मैं चाहती हूँ। दैट मीन्स कि एलिज़ाबेथ को बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो रास्ते में जाएंगी, गंदी हो जाएंगी, वो अच्छी नहीं दिखेंगी, तो उन्हें इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। वो सिर्फ इतना चाहती है कि वो किसी भी तरह से जाके अपनी सिस्टर को मिले और उसको देख करके आए कि वो कैसी है। इज़ दिस अ हिंट टू मी लिज़ी, सेड हर फादर टू सेंड फॉर द हॉर्सेस। उसके फादर लिज़ी मिस्टर बेनेट बोलते हैं, लिज़ी क्या ये मेरे लिए हिंट है कि मैं तुम्हारे लिए हॉर्सेस भेजूं? नो इंडीड, आई डू नॉट विश टू अवॉइड द वॉक। और वो बोलती हैं, श्योरली नहीं, मैं वॉकिंग को अवॉइड नहीं करना चाहती। दैट मीन्स मैं वॉक करके जा सकती हूँ। द डिस्टेंस इज़ नथिंग व्हेन वन हैड अ मोटिव। और डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता जब किसी का कोई विचार है, कोई मोटिव है। ओनली 3 miles, आई शैल बी बैक बाई डिनर। कहती हैं सिर्फ 3 माइल्स का डिस्टेंस है और मैं डिनर के टाइम तक वहाँ से वापस आ जाऊँगी। आई एडमायर द एक्टिविटी ऑफ योर बेनेवोलेंस हियर। हिज फादर सेड कि वो उसके इस जो ट्रबल लेकर के वो जा रही हैं अपनी सिस्टर से मिलने को, इस नेचर को, इस एटीट्यूड को वो बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। ऑब्जर्व्ड मैरी बट एवरी इम्पल्स ऑफ फीलिंग शुड बी गाइडेड बाय रीजन एंड इन माई ओपिनियन एक्सर्शंस शुड ऑलवेज बी इन प्रोपोर्शन टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो बोलते हैं कि एक्सर्शन शुड बी ऑलवेज इन प्रोपोर्शन टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। दैट मीन्स कि हमें जो हम रिजल्ट इन हार्ड वर्क कर रहे हैं जिस चीज़ को पाने के लिए, तो आउटपुट उसके इक्वल ही होना चाहिए, है ना। वी विल गो एज फार एज मैरिटन विल विथ यू, said Catherine and Lydia. Elizabeth accepted their company and the 3 young ladies set off together. और जब वो जाने की तैयारी करती हैं तो उनकी 2 सिस्टर्स कैथरीन और लीडिया जो हैं वो उन्हें बोलती हैं कि वो मैरिटन तक उनके साथ जाएंगी, और एलिज़ाबेथ हैप्पीली उनकी कंपनी को एक्सेप्ट करती हैं और वो तीनों यंग लेडीज़ एक साथ वहाँ से निकलती हैं। ओके स्टूडेंट्स, thank you. The remaining portion of the story will be covered in the next video. Hope you understood the story well. If you have any doubt, you can call and ask. Thank you and have a good day. Mama, एक और